for a thought-provoking lecture about Go Samrakshana and the concept of the theme of the program today and its initiatives. Now we request our Honorable Chief Guest, Dr. Vallabhai Kachariarji, to give inaugural address, followed by the launch of Charaka Ayurveda products. Thanks. May I request Dr. Vallabhai to address the gathering. वंदे गो मातरम। गौ माता की जय। राम राम। राम राम भी बोलते नहीं यार। जय श्री राम। जय श्री राम। इंग्लिश और हिंदी की बोथ दोनों चलेगी? अच्छा, ओके। चरक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड and Vishwa Ayurveda Parishad Telangana both have organized this today's seminar. A seminar on a unique subject, that is Desi Go Sanrakshana and Panchgavya Ayurveda products. And बाद में लिखा है the promising roadmap for Atmanirbhar Bharat. I think much have been said by our Honorable Srinarayan ji. Today, all other guests on the dais, I am not taking the names, right from Dr. Srinarayan Reddy, Dr. K. Kishan Rao, Premanand Rao ji, Premanand Rao, then Dr. A.V. Rao, Dr. Ansuya, yes, our Additional Director Ayush, Dr. Jai Krishna, and all. Let me go ahead. Really very happy to be over here to share my views regarding Gau Sanrakshana and Panchgavya Ayurveda. Gao Vishwasya Matra, that has been said. गाय विश्व माता है, not only our Hindu, not only Telangana or our India. It is a very really vast significance that all we should understand. It is the mother of universe, and universe is having not only human kingdom, but human kingdom, animal kingdom, as well as plant kingdom, and she is the real mother of all three kingdoms. That's why she is known as Gao Vishwasya Matra. Another एक श्लोक है जो है नाम है गाव मातर सर्वभूतानाम गाव सर्व सुख प्रदा. It means सर्वभूतों की माता, all beings, and along with that सर्व सुख प्रदा, welfare of all, not only human beings again, but all the living creatures. That is the real significance of Mother Cow, that all we should understand and we should propagate also. After Corona, I think people have learned that what a small microbe can do to the human beings. हम सब कैद में थे, वो फिरता रहता, घूमता रहता था वायरस. That was the real pity for science also. ऐसे समय में really now people have realized to think about the going back to the nature. कुदरत के तरफ, प्रकृति के साथ फिर से चलो, और along with that living in harmony with nature. नेचर के साथ समाधिता के साथ हम सबको चलना होगा. ये सबसे बड़ा मैसेज कोरोना ने हमें दिया है. And in that perspective, I think today our relevance regarding the mother cow is most important. गाय एक ऐसा यूनिक सोल, यूनिक अद्भुत आत्मा है. मैं कभी कभी कहता हूँ अद्भुत है, यूनिक है. उनका जो पंचगव्य भी काफी उसके बारे में बताया गया. डू यू नो ऑल पंचगव्य?
cow milk, cow curd, cow ghee, cow urine and cow dung. गोमय, गोमूत्र, काऊ का घी, दही और दूध. Milk is known as cow milk is known as ambrosia, अमृत. And cow dung is known as गोमय वसते लक्ष्मी, इससे अमृत. इससे लक्ष्मी, गोधन. And cow urine again उनको गंगा के साथ, गंगा जी के साथ बताया गया है. It means के it is pure medicine. इन सबको ध्यान में रखते हुए गौ संरक्षण, इट मीन्स के प्रोटेक्शन ऑफ द काउ, कंजर्वेशन ऑफ द काउ, along with the development of the cow. Now it is high time to explore the potentiality of the unexplored area of cow-based economics, cow-based science. Science may be related with the health, may be related with the agriculture, and at present all the climate change issues. Yesterday we just had news that there is glacier विस्फोट हुआ ना कल ही उत्तराखंड में. तो सच टाइप वो प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज एंड मे बी कोरोना इज अ मैन मेड कैलेमिटी. बताया जाता है कि चाइना ने इस वायरस को लैब में प्रोड्यूस किया है. इट मीन मैन मेड. तो आने वाले दिनों में we will have to fight with both the man-made as well as natural-made calamities. And what will be the solution? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी used to say many times. वो क्या बोलते थे? There is inconvenient truth is there. Yes, ये बात सही है कि आज पूरा विश्व आपदाओं से घिरा हुआ है. लेकिन what is the solution? And for that solution, we will have to find out from the cow, mother cow. And that's why we all are happy that now it is our era. Yesterday and tomorrow and today only, I was talking with many Gau Rakshak and Gau Seva people. All are worried कि क्या होगा सर, इतनी गाय कट रही है, रोज इतनी गौशाला में हमें रखना पड़ता है. What is the solution then? Solution is the basic awareness regarding the cow. Solution is the importance for our livelihood, importance for ourselves. हमारे स्वास्थ्य के कारण बोलते हैं. यदि हम आपको कोई डर बताएंगे नहीं तो मर जाओगे, जो इतना नहीं करोगे तो यू विल डाई, तब आदमी समझेगा. तो ऐसे सब टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द काउ for a health purpose. We all wish to live in a healthy environment and with our own body health. आयुर्वेदा हमारे यहाँ बैठे हैं, बाकी के लोग भी बैठे हैं. आयुर्वेदा is a life science. It is not only for curative. It is preventive, promotive as well as curative science. And Panchgavi is one of the part of that Ayurveda. And now it is high time to reinvent. वैसे तो हमारे ऋषि मुनि बेसिकली they were scientists. At that time word was used as a ऋषि. उन्होंने जो रिसर्च करके हमारे लिए for whole world, हमारे साइंटिस्ट ऐसे थे वो ऋषि मुनि कि इन्होंने कभी पेटेंट नहीं ली. तो आज के साइंटिस्ट क्या पेटेंट ले लेते हैं और कहते हैं कि यस इट्स माय प्रॉपर्टी एंड आई विल एक्सप्लॉइट इट फॉर माय वेल बीइंग एंड बाय टू इंक्रीज माय वर्थ कैपिटल. लेकिन हमारे साइंटिस्ट ऋषि मुनियों ने तो दे केप्ट ओपन फॉर ऑल. तो उसमें से समय जाते जाते मुझे लगता है कि काफी वेनिश हुआ. अभी फिर से समय आया है. कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है. तो ऐसे समय में फिर से हर एक सदी में ऐसा एक समय आता है. एट दैट टाइम पूरा एक माहौल बदलता है. जैसे अभी हमारे गए ना विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री कहे कि भाई राम मंदिर का एक माहौल बना है. फिर से लोगों को एक नया विषय और नई आस्था, नई श्रद्धा के साथ, एक नया एक ऑनर के साथ हम राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं. वैसे ही अभी समय आया है, आ रहा है वेल बीइंग का.
लोग कोरोना के बाद तो समझ गए हैं कि यदि कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो हेल्दी बॉडी हेल्दी नहीं होगा, हेल्दी माइंड कैसे रहेगा, एंड हेल्दी नेशन कैसे रहेगा। वी ऑल आर वर्किंग फॉर दैट। वी वांट टू मेक आवर कंट्री, और प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं बार बार, हेल्दी इंडिया, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अल्टीमेटली उनकी एक कल्पना है कि अपने देश को एक ग्रेट एंड ग्लोरियस एंड डिवाइन इंडिया बनाना है। हाउ वी कैन मेक इट ग्लोरियस, डिवाइन, थ्रू काउ बेस्ड इकोनॉमी, थ्रू काउ बेस्ड सोशल एनवायरनमेंट, थ्रू काउ बेस्ड ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ। गाय ऐसा है कि अभी जो जैसे मैं सुन रहा था, गाय आती है तो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर फार्मर, फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, फार्मर तो अच्छा रहेगा। नाउ फॉरगेट अबाउट फार्मर ओनली। गाय केवल फार्मर की नहीं है, इट इज ऑल फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए। फार्मर नहीं रखेगा तो हमें रखनी पड़ेगी फॉर आवर वेल बीइंग, हमारे स्वास्थ्य के लिए। गाय का दूध नहीं पिएंगे, गाय का पंचगव्य नहीं खाएंगे, गाय के साथ नहीं रहेंगे तो कैसा। कल ही हमारा एक यहाँ बड़ी मीटिंग थी, भूमि सुपोषण अभियान चलाने के लिए हम पूरे देश में चलाने जा रहे हैं। इस माता जहर बन गई है भूमि माता। तो हाउ टू मेक सोइल हेल्थी, एंड टू मेक सोइल हेल्थी अगेन गाय का गौमूत्र और गोबर, गाय के गौमूत्र और गोबर से बनाया हुआ जीवामृत, फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, और उनके आधार पर टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ and the productivity of our crops, vegetables, fruits, and ultimately we will have to break the vicious cycle and again पॉजिटिव साइकिल शुरू करना पड़ेगा। ये सबके लिए भी गौ माता। लेकिन यहाँ जो आज कम्युनिटी बैठी है, आप सब लोग जो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए तो ये स्वार्थ की बात है, समझाएगी। लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, मुझे लगता है कि अभी मैं थोड़े समय पहले एक पत्रकार परिषद में आई टॉक अबाउट, मैं भूल गया, लेकिन वो काफ एंटी रेडिएशन चिप के बारे में, तो बहुत सी पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने झंडा उठाया कि यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट मीथ, अनसाइंटिफिक। मैंने बाद में उनको तो साइंटिफिक प्रूफ भी दिया, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं गाय के बारे में जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, श्लोक में है, लेकिन अभी तक उनको इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के जमाने के अनुरूप, आज की टेक्नोलॉजी, साइंस, लेबोरेटरी के मानक पर, एज पर देयर स्टैंडर्ड, एज पर देयर फॉर्मूला, देयर परफॉर्मा, हाउ वी कैन मेक इट रियली प्रूव्ड के यस यूरिन is antibacterial, antiviral, immunomodulator, bioenhancer. Several cow dung is also. How many microbes? And microbes are really plant growth के लिए, even medicine के लिए we are using. So all for three, plant health, human health, and animal health, we will have to have research again. मल्टीपल फेसेट्स है उनके रिसर्च के, यहाँ बहुत से लोग बाद में भी बोलने वाले हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे इस पंचगव्य को आगे बढ़ाया जाए रिसर्च के माध्यम से। वी आर हैविंग ऑल फैसिलिटीज। कभी कहते हैं ना कि अभी तो बजाय है कि एक अच्छा एटमोस्फेयर बना है पूरे देश में। गवर्नमेंट इज ऑल्सो विथ यू, गवर्नमेंट की नीति भी है, नियत भी है, दोनों से हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में समाज के साथ जुड़ करके हाउ वी कैन प्रूव आवर एफिशिएंसी इन ए साइंटिफिक वे, इस विषय को लेकर आज यहाँ जो गोष्ठी हो रही है उसमें हमारे चरक डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने जो देखिए गौशाला तो है ही, गिर और काकरे दोनों रखी है। मैं अभी तो कहूँगा कि नाउ यू गिव ओंगोल ऑल्सो, बिकॉज योर इंडिजिनस ब्रीड इज ओंगोल, यहाँ की तो ओंगोल, और इनका एक्सपेरिमेंट के साथ
नॉट ओनली ब्रीड इम्प्रूवमेंट का अलग विषय है, उनके लिए उनका जेनेटिक्स, उनका साइंस. वी विल टॉक विथ आवर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट. बट टुडे with आयुष मिनिस्ट्री, with आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, पंचगव्य डॉक्टर्स एंड इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स, हमारी निशिता है बैठे लाइक मी, ही इज ऑल्सो एलोपैथिक डॉक्टर, मैं भी एलोपैथिक डॉक्टर हूँ. फिर भी हमें इस बात का समझना पड़ेगा कि कैसे हम ऐसी बहुत सी बातें जिनको मिथ बोलते हैं लोग समझ. मैंने उनको कहा, और डॉक्टर साहब को जिन्होंने साइंटिस्ट को, एक बार हमारी डिस्कशन हुई, डू यू नो अवर डॉक्टर हितेश जानी, डू यू नो अवर डॉक्टर भट्टागर, तो नहीं. तो सिमिलरली यू डोंट नो अबाउट दी साइंस ऑल्सो. इट इज 1+1 = 2. आप जैसे हमारे डॉक्टर भट्टागर इतना रिसर्च कर रहे हैं कि डॉक्टर जय कृष्णा कर रहा है, यू डोंट नो बिकॉज आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं आए. सिमिलरली आज का जो काउ साइंस है, पंचगव्य साइंस है, पंचगव्य जो उनका इम्पोर्टेंस है, आपका क्षेत्र के बाहर है, इसलिए नहीं आया है आपके पास. इट इज ट्रू. मैंने कहा कि आज हम ये जो मोबाइल में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ से हम वी आर सेंडिंग द व्हाट्सएप, एंड अमेरिका में बैठा हुआ फ्रेंड भी हमारा टिक मार्क हो जाएगा ब्लू, तो पता चल जाएगा ही हैज सीन. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है. लेकिन कोई एकदम गांव के दूर दराज के बोलो ये थोड़ा पॉसिबल है जब तक वो देखेगा नहीं. तो मैंने कहा आपके बारे में भी, गाय के बारे में भी ऐसी बात है, यू डोंट नो, दैट्स व्हाई यू आर आर्ग्यूइंग. बट कम विद अस, हैव रिसर्च अलोंग विद अस. कोरोना में मैडम को पता होगा, आयुष मिनिस्ट्री ने पूरे देश भर में आयुर्वेद के साथ, पंचगव्य के साथ बहुत क्लिनिकल ट्रायल किए. मोर देन 2472 पेपर्स ऐसे पूरे देश भर से आयुष मिनिस्ट्री के पास आए. और एवरीबडी ट्राइड कि भाई मैंने केवल पंचगव्य की गाय के गोमूत्र और गिलोय के साथ बना करके कोरोना पर मिटा दिया. कोई ने कहा पंचगव्य के साथ, कोई ने कहा काऊ डंग के साथ, कोई ने कहा कि हमने इम्यूनिटी बढ़ा दी. एंड एवरीबडी वेर ट्रू. तो ये बात ये है कि नाउ रियली इट्स टाइम to authenticate such type of trials, and that prove with our WHO guidelines, our ICMR guidelines, so that they will have to believe it. And I think our Charak Dairy is on that line doing very well. Yesterday they told me that they have made one capsule. We are going to launch this also. Cow urine, maybe in the liquid we are taking, but they have made the capsule after freezing the urine and palatable. अच्छा, आज के जो मैंने कहा कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, पेलेटेबिलिटी, इजीली अवेलेबिलिटी ऐसे बना करके इन्होंने दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर द वेरियस सच टाइप ऑफ. और इसलिए मैंने कहा कि यू कैन नाउ स्टार्ट फॉर इंजेक्शन ऑल्सो. व्हाई कांट यू गिव इंजेक्शन फ्रॉम आयुर्वेदिक मेडिसिन? यू कैन. कैप्सूल, टैबलेट एंड देन इंजेक्शन एंड देन IV फूड ऑल्सो. Oh, everything is possible. We as a Ayurvedic person, as a Panchagavya therapist, as a Panchagavya doctor, we are not denied of using the technology. Present technology, present equipment we can use. Technology तो कोई एक केवल एलोपैथी की केवल उनकी नहीं है. You can utilize the technology, and we will manufacture medicines in such a way that they are easily acceptable to the present society. दैट इज अवर, मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए. काउ यूरिन, व्हाट वी डिड इन व्हेन आई वाज चेयरमैन गौ सेवा आयोग इन गुजरात, व्हाट वी डिड, वी invited various, we had an interdisciplinary research. We invited the young youth, young doctors, young entrepreneurs to take part in it, maybe from any faculties. आर्ट्स के बच्चे भी आए और हमने कहा कि भैया आप वेद एंड काव उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, प्रेजेंट करें पेपर. फार्मेसी के आए, हमने यूरिन दिया कि भाई यूरिन, आप व्हाट आर द कंटेंट्स इन यूरिन. मेडिकल वाले आए तो मैं कहा कि चलो यूरिन का, एक लड़के ने कहा कि किडनी स्टोन में
cow urine is working. मैंने कहा चल you try for that only. मेडिकल कॉलेज में गया, मेडिकल कॉलेज में किडनी स्टोन के पेशेंट सिलेक्ट किए और काव यूरिन की कैप्सूल और बाकी का along with that other medicines, other Ayurvedic medicine only. He tried and he proved that stones are breaking through काव यूरिन और पेपर पर पब्लिश किया. तो similarly now we have to authenticate in all other diseases also. And individually पंचगव्य baby ghee अभी हम we are trying for the mentally challenged यंगस्टर, जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं ना, मेंटली रिटार्डेड होते हैं. नाउ वी आर ट्राइंग काव घी, गाय का घी नोज में डालने के कारण इट गोज अप टू दी ब्रेन सेल्स एंड इट इम्प्रूव दी न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन सेल्स. इट मे वेदर इट इम्प्रूव दी मेंटल डिसऑर्डर देन intellectuality, that we have to prove it. But ultimately, we have to try it. In 100 cases, 200 cases. Today, in the evening, I will have one seminar with all over India's Divyang Teachers Association. बात यह है कि basically, कि we have to search in various fields where we can collaborate and cooperate and we can influence the people. चलो आज एलोपैथी में तो रिसर्च हो ही रहा है, लेकिन आयुर्वेद में और हमारे पंचगव्य में रिसर्च कम हो रहा है. वी हैड ए कॉन्फ्रेंस इन 2014 with the Ayush Ministry at government. After Narendra Bhai Modi came as a Prime Minister, I wrote a letter. At that time, Dr. Harshvardhan was the Minister for Ayush also. I wrote a letter that पंचगव्य चिकित्सा का पूरा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए. आप शायद इसमें कोई होंगे, विश्व आयुर्वेद परिषद वाले हमारे 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रहा था और उसमें पंचगव्य चिकित्सा के बारे में मोर देन 200 पेपर्स जिन्होंने कहीं ना कहीं रिसर्च किया था वो पब्लिश किया, वहाँ डिस्कशन हुआ एंड वी कुड फाइंड आउट दैट देयर आर ह्यूज स्कोप फॉर रिसर्च इन पंचगव्य थेरेपी. एंड देन after research, then it will come into practical application, and after practical application, total health scenario we can change it. कल ही हमारी बात हो रही थी कि we are proud of making हमने 18 एम्स बना दिए, but it's not the solution. 18 एम्स बना के और लेकिन 30% पेशेंट आज पूरे देश में कैंसर के हैं, तो इसलिए हम कैंसर के हॉस्पिटल बनाए ट्रीटमेंट करने के लिए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करें. पेशेंट, मेडिसिन, डायग्नोसिस, देन मेंटल टेंशन, ऑल दिस थिंग. उनके बजाय if only we can go for cow-based agriculture and पंचगव्य as a preventive and promotive medicine, we can improve our soil. We go for our organic farming. We eat food which is non-toxic, non-poisonous. Then automatically our immunity will be there, and we will be not having any disease. So which is better one? Prevention or curing? Definitely prevention is better. So this type of huge potentiality for our health budget. How many medicines, how much medicines we are importing? कभी कभी गौरव करते हैं कि 5 लाख का पैकेज भारत सरकार ने दिया हमारी स्कीम में, बट इट्स नॉट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज फॉर रिसर्च. भाई आप रिसर्च में पैसा डालो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए पैसा डालो. गौ संरक्षण से लेकर के पंचगव्य में पूरी जो सिस्टम है उसमें यदि हमारा पैसा यूज होगा तो एक पॉजिटिव एक साइकिल के साथ और हेल्दी इंडिया का कंसेप्ट, इवन बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड, ऑलमोस्ट 90% पेस्टिसाइड आर केमिकल पेस्टिसाइड एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग, ओनली 3% इज बायो पेस्टिसाइड. यूज स्कोप इज देयर फॉर बायो पेस्टिसाइड, एंड इफ वी यूज बायो पेस्टिसाइड देन अगेन द पॉजिटिव साइकिल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज विल बी देयर. वी विल ऑल हैव ए गुड हेल्थ. तो ये सब पूरी
नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज है, राष्ट्र निर्माण की एक्सरसाइज है, देश को समृद्ध करने का एक पूरी एक सोच है कि कैसे अब ऐसा एक समय आया है कि जब माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी सरकार और पूरा समाज आज एकजुट होकर के गाय के साथ जुड़ करके गाय की सुरक्षा किस लिए, सुरक्षा क्यों, हमारे स्वार्थ के लिए, फॉरगेट अबाउट द गाय का वो गाय की सुरक्षा, लेकिन ये हमारे स्वार्थ के लिए हम कर रहे हैं। ऐसा एक पूरा मनोवातावरण पूरे देश में एक चेंज इन माइंडसेट ये हमें करने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम सब काम कर रहे हैं। हम सबको इसमें जुड़ना है कि कैसे विच फील्ड, आज सुबह में भी हम ब्रेकफास्ट के समय चर्चा कर रहे थे कि देयर आर सो मेनी फेसेट्स ऑफ काउ प्रोटेक्शन। गौ संरक्षण केवल एक हत्या से बचाना, इट्स वन पार्ट, वहां से लेके पंचगव्य रिसर्च तक। बिलीव मी, वी आर डीलिंग विद मोर देन 45 डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वेयर काउ इज समवेयर अटैच्ड, कहीं ना कहीं गाय से ताल्लुक है। हम उनसे कह रहे हैं भाई आप गाय के लिए करो, और ऐसे करके पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में हमारा जो मकसद है काउ प्रोटेक्शन का, गौ रक्षा का, वो भी संपन्न होगा। उनके साथ हमारी सॉइल हेल्थ होगी अच्छी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, हेल्दी इंडिया का कंसेप्ट हमारा अच्छा शुरू होगा रहेगा, और एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा। हम कितना इकोनॉमिकली भी इतना बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट, इसलिए हमने एक और भी मूवमेंट चलाई है, मुहिम काउ बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज जैसे पंचगव्य में के लिए कर रहे हैं आप, और 2 ही कैप्सूल आप शुरू कर रहे हैं, एक कैप्सूल, और सिमिलरली पंचगव्य से लेकर के बायो फर्टिलाइजर, बायो फ्यूल, बायो पेस्टिसाइड, उनके इक्विपमेंट, पंचगव्य थेरापी, पंचगव्य चिकित्सा, उनके लिए डॉक्टर, उनका फार्मास्यूटिकल्स, उनका रिसर्च, इतना बड़ा वाइड फील्ड है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी हम काउ बेस्ड एनवायरनमेंट खड़ा करके कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड होने के कारण क्या होगा कि सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कोई गौ रक्षा का काम कर रहा है, वो कह रहा है कि यार सर हम तो गौ रक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी भी गौ हत्या बंद नहीं रही, आप यू आर नॉट एडवोकेट इन द लॉ। बात सही है, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट होना चाहिए, बहुत से राज्यों में है, बट along with that change in mindset of people is also required. Along with that the utility of the पंचगव्य, क्योंकि आज का जमाना है इकोनॉमिक से साथ, अर्थशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बहुत से ऐसे किसान मिलते हैं कि सर क्या करें, काउ इज नॉट वायबल, दैट्स व्हाई वी लीव इट टू रोड। लेकिन जब उनको पता चलेगा, जिसे बताया गया कि वी हैड ए कैंपेन रिगार्डिंग दी गो में दीपक अभियान, दीपक एक गाय के गोबर से, काउ डंग का, एक इट वाज ए जस्ट सिंबॉलिक, बट वी इंट्रोड्यूस मोर देन 100 आइटम्स मेड फ्रॉम काउ डंग, एंड सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स केम फॉरवर्ड, सो मेनी महिला women's group came forward for employment, for entrepreneurship, for overall digital marketing. So slowly and steadily we are going ahead with all the aspects, covering all the aspects, all the facets of cow-based economy, cow-based environment, cow-based science, agriculture, health, all issues. We have to unite together. We will have to work together till our goal is reached. और प्राइम मिनिस्टर तो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट दे रहे हैं, उसके पीछे भी यही है, हाउ वी कैन मेक आवर कंट्री आत्मनिर्भर थ्रू काउ बेस्ड इकोनॉमी। पंचगव्य के आधार पर, बायोफ्यूल के आधार पर मेक इन इंडिया कंसेप्ट को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब इश्यूज को लेकर के मुझे लगता है कि हमें काम करने की आवश्यकता है। उसमें जो रिसर्च का काम हमारी चरक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर सुरेना रेड्डी जी एंड मिस्टर राव एंड ऑल टीम। कि आप एक, इट्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इजीली तो बाकी की आइटम तो इजी बना सकते हैं, लेकिन इसमें R&D करना पड़ता है। R&D के बाद अच्छी तरह से सर्टिफिकेशन के बाद, ट्रायल के बाद
आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं और बाद में भी मार्केट, ऑल आई नो एवरीथिंग। लेकिन एक अच्छा काम आपने शुरू किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आने वाले दिनों में बहुत सा काम, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी एक मीटिंग हुई थी आयुष मिनिस्ट्री से। वी आर प्लानिंग टू हैव नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस फॉर पंचगव्य with along with the along with our आयुष मिनिस्ट्री। डॉक्टर राजेश कोटेचा से मेरी बात हुई है, तो ऑल ओवर इंडिया का ऐसा 2 दिन का, थोड़ा सा कोरोना का बढ़ जाए इसलिए इट विल बी सेमिनार एज वेल एज वेबिनार बोथ, वी विल कीप इट ओपन ऑल्सो, डिजिटल ओपन, लेकिन बेसिकली इट विल बी ए सेमिनार कॉन्फ्रेंस फॉर 2 days वेयर वी विल डिस्कस ओनली दी हेल्थ रिलेटेड issues, no biofuel, nothing else. So it will make a great impact on our cow-based Gau Sanrakshana also. So I think I have said many things. Yes, during Corona also, we had a trial with Panchgavya Ayurveda in Jamnagar, Rajkot, in Varanasi, even in Kalyan, Maharashtra, and Bangalore. In 5 places, we had a trial. What we did, we selected patients with mild and moderate cases of corona. We kept them in one hospital. We had a collaboration with allopathy doctors, even IT department and pharmacology department and Ayurvedic doctors. And we conducted a pure clinical trial based on CTRI regulations given by the ICMR, and we have succeeded in that. We have found that very good results are there, 98% results. We got it. Everybody know there was no death among the 200 patients. So this will prove the efficiency of the Panchgavya clinically after clinical such type of trial, that we can go for various diseases also one by one, and that is the challenge for us. I think our Dr. Hitesh Jani and our Vishwa Ayurveda Parishad is doing a lot of research in that direction. We will have to have one core team also. आज एग्जाम के बारे में बता दो about we will have our core team. We will decide that the various subjects with various universities and various departments, so that there is no duplication for research and no subject is left behind. Accordingly, we will go ahead. And in last, I will tell about our Jan Jagran की जो बात कर रहे हैं कि we have to, people should understand the importance of cow for their selfishness. भाई मुझे गाय क्या, क्यों गाय की रक्षा करूं? जब वो गाय के बारे में सही जानेगा तब ना, वो पता होना चाहिए कि A2 milk is better than A1 milk. चलो गाय का दूध, cow milk is better than any other buffalo milk. cow urine की इतनी प्रॉपर्टीज है, cow dung में भी इतनी प्रॉपर्टीज है, cow घी, एलोपैथी डॉक्टर तुम कह रहे हैं ना निशिता जी, एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं कि cow घी मत खाइए, घी में तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन काव घी में ऐसा नहीं है। काव घी तो बेटर, हमारे डॉक्टर बाद में कहेंगे कि उसमें तो कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल कम है, इसलिए वो तो खाना चाहिए। भैंस का घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन काव का घी नॉट अबंडेंट, इट इज ऑन द कॉन्ट्रैरी रिकमेंडेड। तो ये बात जो बच्चों से लेकर के आम जनता के समझ में आएगी तो पूरा एक पॉजिटिव साइकिल चलेगा। और इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गो में दीपावली अभियान के बाद एक वो दीपावली में एक एम्प्लॉयमेंट काव डंग का भी उपयोग अलग तरीके से कर सकते हैं। गाय दूध नहीं देती है, फिर भी गोमूत्र गोबर से भी वो पाली जा सकती है। ये प्रूव करने के लिए हमने एक सिंबॉलिक एक अभियान चलाया एंड पीपल रियलाइज यस इट इज नॉट नेसेसरी एक काव टू बी मिल्किंग ओनली, मिल्क नहीं देती है फिर भी गाय काव इज वायबल, यू कैन अर्न राइट फ्रॉम 100 रुपीज to save 10,000 rupees per day as per your skill or as per your investment. ये भी हमने बता दिया। अभी हम बता रहे हैं कि जन जागरण अभियान के नाते कामधेनु गौ विज्ञान प्रतियोगिता एक परीक्षा लेने जा रहे हैं। इट विल बी एन ऑनलाइन एग्जाम
वन आवर का पेपर रहेगा। इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आप कोई भी कंप्यूटर और मोबाइल से आप एग्जाम दे सकेंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, आपको टिक कर देंगे, आप सबमिट कर देंगे। लेकिन उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी वेबसाइट है kamdenu.gov.in। If you will open that website and you will go to exam menu, then you will find the details of the examination। कितने 4 कैटेगरी में है, बच्चों के लिए से लेकर के एनीबडी एल्स। वहाँ वेबसाइट पर वी हैव केप्ट स्टडी मटेरियल ऑल्सो। वो स्टडी मटेरियल पढ़ करके उसमें से क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। काफ़ी मात्रा में बेसिकली इससे अवेयरनेस प्रोग्राम, नॉलेज ज्ञान वर्धन है कि कैसे गाय के बारे में सब लोग पढ़ेंगे। और करीब करीब 50 से ज़्यादा हमने बुक्स भी रेफरेंस के लिए उसमें रखी है। तो एग्जाम के बाद भी कोई इंटरेस्टेड है तो साइंटिफिक पेपर भी रखे हैं। कोई चाहता है इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने, कोई चाहता है कि मुझे बायोगैस बनाना है उनके बारे में पढ़ने, कोई चाहता है कि घी के मुझे बिजनेस करना है, तो ये सब उसमें से मिल जाएगी फ्रॉम वेरियस बुक्स। तो ये एक हमारा अभियान है जनरल नॉलेज बढ़ाने का गाय के बारे में। और इसके लिए 25 फरवरी को हमारी ये एग्ज़ाम है। मैं यहाँ बैठे सब लोगों को कहूँगा कि न केवल यू ओनली रजिस्टर, आप अकेले रजिस्टर करें वो तो जरूरी है ही, लेकिन पूरे परिवार को, पूरे समाज के विभिन्न तबके के लोगों को, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर कम्युनिटी में, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर कम्युनिटी में, गवर्नमेंट जॉब में है तो अपने डिपार्टमेंट में, हमारे एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर है तो वो उनके डिपार्टमेंट में, गौशाला वाले हैं तो गौशाला सभी गौशाला को, या कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को। अभी हमने अभियान चलाया तो एनएसएस का बच्चों का एक पूरा वेबिनार हुआ, एनसीसी के बच्चों का वेबिनार हुआ, स्काउट एंड गाइड का वेबिनार। तो ये अलग अलग तरीके से वेबिनार के माध्यम से हम एक जन जागरण कर रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए अब आइए, आगे आइए। ये सब काम के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल सर्व अवर पर्पस। हम जो चाहते हैं कि हम तो गाय के बारे में जानते लेकिन समाज नहीं जानता, सर क्या करें, लोग नहीं मानते। लोगों को बनाने के लिए रास्ता तो यही है कि उनका माइंडसेट चेंज करें। और माइंडसेट चेंज करने के जो वेरियस फैसेट्स हैं, जो तरीके हैं अलग अलग, वो तरीके में एक है हमारी गौ विज्ञान एग्जामिनेशन। इसके बारे में भी आपसे अनुरोध है कि प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा आप 25 फरवरी तक काम में आइए। और लास्ट में अभी मेरे जो बाकी के लोग बच्चे हैं थोड़ा पेपर भी बोलने वाले हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम कि जस्ट यू गिव जिस्ट, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ हमारा मेडिकल साइंस तो है नहीं। केवल जिस्ट क्या किया एग्जैक्टली और क्या इन लोगों को पता चलना चाहिए कि इतना इम्पोर्टेंट इस रिसर्च का हमारा था। इसके बारे में कर करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर से बहुत बहुत डॉक्टर सूर्यनारायण जी साहब सबको, पूरी टीम को धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे डॉक्टर भट्टागर, आपने तो बुक लिखी है, लाए हो कि नहीं है? वो बुक रखी है यहाँ, अच्छा वेरी गुड। डॉक्टर भट्टागर है, ये रिटर्न है बुक ऑन काउ एंड हेड टू विद काउ डंग पेपर। हाँ तो वो भी बात है, कहना रह गया, काउ डंग से काउ डंग पेपर का तो बन गया है। यू कैन हैव एक्सप्लोर दी पोटेंशियलिटी फॉर इंडस्ट्री। अभी काउ डंग पेंट की बात आ गई, कलर, वो भी हमारे गडकरी जी ने बोला। काउ डंग से ईंटें ब्रिक्स बनती हैं, टाइल्स बनती हैं, प्लाईवुड बनता है। तो ये सब देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, ताकि हमारा बिजनेस भी चले, हम एंटरप्रेन्योर भी बने और हमारी गौ माता भी बचे और समाज के। हाँ देखिए, ये गाय की गोबर से बना हुआ नेम प्लेट है, आपके अपने टेबल पर रख सकते हैं इसे, बढ़िया। मेड फ्रॉम काउ डंग, इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए नेम प्लेट। कोई भी एनी पोर्ट से लेकर के एनी आइटम यू कैन मेक फ्रॉम काउ डंग। तो दीज आर द वेरियस है अपनी किचन, नहीं किचन में ओके, बट देयर आर सो मेनी आइटम। यू कैन गो टू अवर वेबसाइट एंड यू कैन सी फ्रॉम अवर वेबसाइट ऑल्सो that how many more than 300 items are made from cow dung. Similarly, cow urine, similarly cow milk, cow ghee, everything. But anyway, congratulations to you and thank you very much. Katiraj ji, really thank you for very inspiring and motivating speech, particularly more about Panchagavya and R&D activities and your initiatives. Now I request our chairman, Sri Suryanarayan Reddy Garu, to felicitate
Dr. Vallabhai Khateria with a shawl and a memento. Oh, nice. Sir, excuse me. Clap, let us all clap in respect of Dr. Vallabhai Khateria. అందుకే అయిపోయినా పైగా ఉంది మేడం తీసుకో Dr. Premanand Rao, National Secretary Vishwa Ayalendra Production, is also presenting a diary to Rashtriya Kamdena Chairman. అందరూ ఎందుకు It's a national diary. There is another diary of the South India, where even Charka diary also issued a small advertisement. సార్ ఒకసారి పట్టుకోండి అందరు కొంచెం ఇట్లా ఇట్లా So, a small memento made with Manjula wants to present a small gift made with cow dung to Dr. Vallabhai Khateria. वाह बहुत बढ़िया मूर्ति देव देव की मूर्ति లాంచ్ అయిపోయిందమ్మా ఇదే What about the market? లాంచ్ ఇది मार्केट मिल जाता है वेरी खाले खाले। ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ हैदराबाद में కాలే उसी गौशाला से लेते हैं Now, there is a small program of product launch, market launch of Charaka Ayurveda. We request Honorable Chairman Rashtriya Kamdena to open the product. సార్ కొంచెం మొబైల్ బ్యాక్ సైడ్ అండి సార్ మేడం 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 ఆ పేపర్ Open the. Gopala Krishna Garu, Chairman Goseva Trust, requested to come and sit on the dais. These are the Dr. Nishita capsule Janojaman, form. she wants to give a small memento to Dr. Vallabhai Khateria. Capsule is Please. made from the cow urine. Panchgavya Sanjeevani. wait. After that. మేడం Just See, this is from urine. These are the various products, Panchgavya products, liquid form. पंचगव्य घृत गाय का घृत है घी नेजल ड्रॉप्स वेरी गुड చూపి సార్ అందరూ ఒకసారి చూపి अच्छा रखे इसे यस వన్ సెకండ్ సార్ Wireless mic. चलो हमारे బాయ్ నా Wireless mic, please. నా కొంచెం सी అయిపోయి చూడండి दिस इज गौ पंचकम ईच बोतल कंटेन्स देखिए इसमें क्या है काव पंचकम है यूरिन ऑल पंचगव्य फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी as I already said these are the capsules ये भी संजीवनी है अर्क है गोमूत्र अर्क और लिक्विड फॉर्म Pharmacist will speak about this product. एक पंचगव्य की घृत है और नेजल ड्रॉप वो घृत ओनली घृत Just a minute. After. ओनली घृत पंचगव्य का एक पार्ट పోలే చైర్మన్ कांग्रेचुलेशन धन्यवाद దాదాపు Now I request Narsaraju Garu, our technical advisor, chief technical advisor, to say a few about the products. ओके Dignity